So today we are doing our last bit of inheritance और इसके अंदर हमने बेसिकली देखना है कि लास्ट की जो रह गई हुई है कि इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप के अंदर जब आपने बेस क्लास में कोई फंक्शंस लिखे हुए हैं बट यू हैव अ हमने ये देखा था जिसमें बेस क्लास के फंक्शंस रीयूज हो रहे थे बट वी माइट हैव सिचुएशंस जहाँ पर आपने बेस क्लास का फंक्शन इनहेरिट किया हुआ है लेकिन आपकी डिराइव्ड क्लास उसकी कोई स्पेशलाइज्ड वर्जन रिक्वायर करती है तो उस स्पेशलाइज्ड वर्जन को किस तरीके से लिखना है द वे टू रेफर टू दैट इज बाय सेइंग कि हम बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करने लगे हैं या फिर रीडिफाइन करने लगे हैं अपनी डिराइव्ड क्लास के लिए So when a derived class's member function has the same name as a base class member function, it is said the derived class function redefines or overrides the base class function. Basically हमने ये करना है, but we're going to pick up a concrete example ताकि हम देख सकें कि इसका इस्तेमाल किस किस तरह से होगा. तो for instance over here you have two classes, एक आपकी base class है, एक derived class है. दोनों के अंदर show message का फंक्शन लिखा हुआ है लेकिन यू वांट के बेस क्लास में फर्क मैसेज आए और डिराइव्ड क्लास के अंदर फर्क मैसेज आए तो दिस इज लाइक द बेसिक मोस्ट सिंपल केस जिसके अंदर आप फंक्शन ओवरराइड कर रहे हो. इसके अंदर बेसिकली द वे टू टॉक अबाउट दिस इज टू से कि बेस क्लास के अंदर एक शो मैसेज इंप्लीमेंट हुआ है, डिराइव्ड क्लास ने शो मैसेज को इनहेरिट किया बट यू वांटेड टू वर्जन ऑफ शो मैसेज तो आपने उसको फिर ओवरराइड कर दिया या फिर रीडिफाइन कर दिया for your defined class. So we're going to pick this concept up and we're going to do a couple of things with an example. इसको रखेंगे हम अपने फोकस के ऊपर and we're going to do another couple of things जिससे हम अपनी क्लास को थोड़ा सा यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकें. So the example that we're going to use is our hierarchy is going to be कि मैंने एक student class रखनी है and it's simple enough so I don't actually need the diagram but I need a student class and then I'm going to derive a student TA class from this. So student TA और TA student class और student TA class के अंदर difference ये होना चाहिए TA for teaching assistant. So teaching assistants are going to be students लेकिन उनके पास कुछ extra चीज़ें होंगी जो उनके लिए manage करनी होंगी और mainly जो हम अभी चीज़ें रखेंगे उनको differentiate करने के लिए all students are going to have IDs, names and a list of courses that they're enrolled in for the semester. Students TAs के पास ये सारा कुछ होगा but in addition they will also have the courses जो कि उनको assign हुए हैं as TA. So student TAs जो है उनकी दो courses की list होंगी, एक वो होगी जो वो पढ़ रहे हैं जिसके अंदर वो enrolled हैं और एक वो list होगी जिसके अंदर वो TA कर रहे हैं. So they are actually assigned those courses and are working on those courses as teaching assistants. So again to start off we'll just do a basic student class और उसको implement करके test करेंगे. So nothing new again, nothing new happening right now. लेकिन our basic structure that we need जिसके ऊपर से फिर मैं overriding करके check करूँगी. So I would want a constructor. Let's write down what we're going to keep. Constructor अभी बनाते हैं but पहले सोच लेते हैं. So we want an ID over here. A student has an ID and let's do this कि जो ID generation है ना उसको static के साथ implement करते हैं ताकि आपकी ID जो है वो किसी logical तरीके से आ रहे हो. We're not sticking in IDs when we are creating this. So we know how to do auto generation of ID. So we'll stick that in जिसका मतलब है कि मुझे अब इधर ना एक ID generation के लिए चाहिए एक static variable. So let's call it an ID generator. तो static बनाएंगे और उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे. आई विल से स्टूडेंट वन से कर देते हैं. यू कैन डू अ 0 बट डिपेंड्स कि आप उसको किस वक्त करना चाहते हो. एंड दिस इज एन इंटीजर. वी वांट टू गिव द स्टूडेंट अ नेम.
I am going to use a string for this. And we want to give them a list of courses. So let's do this. मुझे कोई तरीका चाहिए कि मैं एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज को किसी न किसी तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर होल्ड कर सकूं. सो लेट्स डू a first introduction of we could put in a, but if you remember vector जो होता था वो होता था एक ऐसी array जो कि खुद से C++ का स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी उसको खुद से मैनेज कर रहा होता था. सो टू कीप आवर जॉब अ बिट मोर मैनेजेबल, लेट्स डू दिस कि एक वेक्टर बनाते हैं which means I'm making an array of strings and I am going to call it enrolled courses. इस स्टूडेंट के enrolled courses सारे के सारे इस वेक्टर के थ्रू मुझे मिल जाएंगे और वेक्टर को इस्तेमाल करने के लिए because I am using the STL I have to include vector over here. So vector again nothing too fancy, this is just an array जो कि C++ खुद आपके लिए manage करती है and it's going to be easier to use as compared to an array. And this syntax is just saying कि मुझे एक वेक्टर चाहिए और मुझे वेक्टर ऐसा चाहिए कि हर एलिमेंट के अंदर एक स्ट्रिंग में रख सकती हूँ और ये जो पूरा का पूरा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होगा आई एम गोइंग टू बी रेफरिंग टू दैट एज द इनरोल्ड कोर्सेज फॉर द स्टूडेंट. तो इसको सेटअप करने के लिए मुझे चाहिए है लेट्स कीप अ कंस्ट्रक्टर सिंपल. लेट्स से कि मैं आईडी जो है वो खुद ही जनरेट हो जाएगी एंड आई वांट टू गिव इट द नेम. और नेम के ऊपर मैं अगर कोई नेम नहीं भी देता ना तो मैं इसके ऊपर वो कर देती हूँ बाय डिफॉल्ट, मैं उसका डिफॉल्ट वैल्यू डाल देती हूँ कि खाली स्ट्रिंग के ऊपर इसको सेट कर दें. सो वी वांट अ कंस्ट्रक्टर वर्किंग लाइक दिस. इधर मैं इसको एन कर दूंगी. दिस इज व्हेयर आई एम डूइंग माय इम्प्लीमेंटेशन and nothing too fancy happening over here. My class should be basic items of the object should be ready with this. उसके बाद I am going to do मेन चीज. सो इसके थ्रू अब मेरी आईडी इसके अंदर मैंने डालनी है. आई एम गोइंग टू से नेम इसका इसके ऊपर सेट कर दें, आईडी इसकी सेट कर दें आईडी जेन की वैल्यू के ऊपर एंड आईडी जेन इज स्टैटिक. सो आईडी जेन आईडी जनरेटर को इंक्रीमेंट कर दें ताकि अगले स्टूडेंट की आईडी वो सेट करने के लिए रेडी हो जाए. तो बेसिक आइडिया इज दिस. नाउ वी वांट अ फंक्शन जिससे मैं इस स्टूडेंट के कोर्सेज ऐड कर सकूं. सो आई एम गोइंग टू से कि एक ऐड कोर्स का फंक्शन बना देते हैं. सो void add course void add course and I'm going to set this up कि ये एक कोर्स मुझे एक कोर्स का नाम बता दे जो कि मैंने वेक्टर के अंदर ऐड करना है. इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं. तो स्टिल डूइंग आवर बेसिक क्लास. ओवरराइडिंग हमने करनी है लेकिन ओवरराइडिंग के ऊपर नहीं हम आए, हम एक क्लास सेटअप कर रहे हैं ताकि इवेंचुअली फिर ओवरराइडिंग हम देख सकें. तो ऐड कोर्स के अंदर मैंने ये करना है कि मेरे पास जो वेक्टर है उसके अंदर मैंने नया वाला ऐड कर देना. तो वेक्टर इज मेकिंग माय लाइफ इजी. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट के कितने मैंने अभी तक कोर्सेज रखी हैं और मैंने कौन से इंडेक्स के ऊपर देने हैं. मैं सिर्फ इसके पुशबैक का वो कॉल करूंगी और मैं इससे मेरा एनरोल्ड कोर्सेज की लिस्ट के अंदर करंट वाला कोर्स जो मैंने ऐड किया वो डल जाएगा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू अ प्रिंट डिटेल्स का फंक्शन. Got no parameters.
स्टूडेंट्स का ये फंक्शन है एंड आई वांट टू से कि प्रिंट करें um, ऐसे करते हैं सो दैट वी वांट टू डू मल्टीपल स्टूडेंट्स प्रिंटिंग इवेंचुअली, तो नजर हमें क्लियरली आ जाए। वी वांट टू से कि आईडी क्या है, print the ID, go to the next line, print out the name and print out the courses. So courses print करने के लिए we're going to do a shortcut again which is available to us because हम vector इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि for every course inside my vector of courses that I have been building up, just print out the course name. And कुछ formatting कर देते हैं, इधर लिख देते हैं enrolled courses and let's try this out. ताकि eventually फिर हम इसके ऊपर से students को ये create करके इसको देख सकें। So student, we have a student object called A, इसका नाम रख देते हैं कोई, we don't need to give the ID हमारे constructor से create हो जाएगी, and want to add a course, and a couple of courses so that हम अपनी testing कर सकें। We're adding two, three courses, math and something else. And then we're going to say कि इसके print details कर दें, and we're going to check it and then we will move forward from here. So let's run it and see if our base class is functioning correctly. मैंने एक student बनाया है, उसको 3 courses के उसके enrollment के अंदर add किए हैं, and so मेरा student का ID 1 है, उसका नाम है और उसके 3 enrolled courses मुझे नजर आ रहे हैं। We can do a student B just to quickly check कि मेरे पास ID जनरेशन जो है वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। मैं जस्ट print details कर देते हैं without any courses की addition, just to see कि ID मेरे पास ठीक आ रही है या नहीं। And ID को उसने 2 कर दिया हुआ है। We are getting the second student info over here and we are good to go from here on, जहाँ पर हमने अब बेसिकली ये करना है स्टूडेंट टीए को स्टूडेंट टीए की डिटेल्स क्रिएट करनी है। यहाँ पे ये डाल देते हैं so that we have clear of printing जब हम मल्टीपल स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। We want
इसको मैं हटा रही हूँ, लाइक अ टेस्ट पास्ट क्विक फाइन। तो अब मुझे चाहिए स्टूडेंट टीए. Student TA essentially is a student. So even in our statement or in our description of this role, we can see कि ये is a relationship बन रही है, तो वो inheritance के अंदर cleanly fit करेगा. A student TA is a student. They have everything that a student has. तो उनके पास ये सारी की सारी facility है. उनके पास अपने enrolled courses की list होगी, नाम होगा, ID होगा, उनके courses add हो सकते होंगे, उनके print details हो सकते होंगे. This is the one we are going to override though, because उनके in addition they are also going to have, let's call it, assigned courses. So उनके पास enrolled courses तो students से आ रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा उनको कुछ courses मिला करेंगे जिनके लिए वो TA कर रहे होंगे. So that is the addition that we want to add in. So we are going to say कि एक class और बनाएं, उसका नाम रखें student TA, student teaching assistant, और इसको inherit करें from your student class. And then we are going to do उसी तरीके से इसको सेटअप करते हैं. वी हैव कंस्ट्रक्टर एंड एवरीथिंग दैट वी नीड, इसको बनाएंगे. एंड वी आर गोइंग टू डू और एडिशनल. तो जिस तरह से हमने यहाँ पे वेक्टर बनाया हुआ एनरोल्ड कोर्सेज का, इसी तरह से इसको एक एडिशनल वेक्टर मिलने लगा of, and let's call it assigned courses, just to keep our terminology clear. कि enrolled courses वो हैं जो आप पढ़ रहे होते हो, assigned courses वो हैं जिनके लिए आप टीए कर रहे हो. तो इसका नाम और भी बेहतर कर सकते हो, लेकिन टीए कोर्सेज कह लें या कुछ इस तरह करके, ताकि हमें क्लियरली पता चल रहा हो कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड देन ओवर हियर वी वांट एक तो स्टूडेंट टीए का कंस्ट्रक्टर, एंड वी वांट इट टू आल्सो बी सेट अप इन अ सिमिलर वे के वो एक स्ट्रिंग ले ले, लेकिन स्ट्रिंग का मैंने डिफॉल्ट वैल्यू भी डाला है. सो लेट्स राइट दिस डाउन ओवर हियर. String something n, इधर स्टूडेंट टीए का है ये फंक्शन. एंड ओवर हियर, अच्छा अब मैंने कुछ लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ओवर हियर बिकॉज सारा काम मेरा कंस्ट्रक्टर वो बेस क्लास का कर रहा है. सो आई जस्ट नीड टू call the base class constructor and pass the n to it, और id वो मेरी खुद ही मैनेज कर लेगा. so if I pass, if my student TA constructor is just saying this कि जो भी नाम आप रिसीव करें उसको स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को भेज दें. स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, नाम असाइन करे, n असाइन करेगा नेम को, id जेन को इस्तेमाल करते हुए id अपडेट करेगा और id जनरेटर को इंक्रीमेंट कर देगा. नेक्स्ट थिंग वी नीड इज something similar to this, लेकिन वो ऐड कोर्स, उसका नाम हम ऐड कोर्स नहीं रखेंगे, उसका नाम हम रख लेंगे असाइन कोर्स, जस्ट टू कीप इट, बिकॉज ऐड कोर्स का मतलब है कि जो कोर्स आप पढ़ रहे हो वो ऐड करना है. असाइन, उसका नाम भी असाइन टीए कोर्स कर देते हैं ताकि इट्स रियली क्लियर दैट दिस इज टू डिफरेंट थिंग्स. सो वी हैव एन असाइन टीए कोर्स. सिंटैक्स वाइज इट इज गोइंग टू बी सिमिलर, लेकिन असाइन टीए कोर्स जो है वो आपके टीए वाले कोर्सेज के अंदर एडिशन कर रहा होगा. और इफ वी दिस, ये वाला फंक्शन खाली स्टूडेंट टीए के पास होगा. अ रेगुलर स्टूडेंट इज नॉट, डज नॉट नो अबाउट दिस, और उसके पास इसका एक्सेस भी नहीं है. बट द स्टूडेंट टीए हैज एक्सेस टू एवरीथिंग दैट योर स्टूडेंट हैज. So what we can do is just pick the code up and update the names from here. Or this is like simple enough. Assigned ये कोर्स के अंदर मैंने करना है कि इस वाले वेरिएबल के ऊपर, इस वाली वेक्टर वेरिएबल के ऊपर मैंने पुश बैक कर देना the new course that I have just put in. And अच्छा अब हमारा आने लगा है overriding, because what I want over here is अब मैं अगर इसको print details के ऊपर चलाऊंगी, and I can just quickly do it without adding in the new ability that we are learning today. So I can do this. It won't work out very nicely, but let's see. Student TAB
दिस इज अ स्टूडेंट जिसके पास जो टीए भी असाइन हो चुका है, एंड आई एम गोइंग टू से कि बी के कुछ कोर्सेज ऐड करें, हम कोर्सेज बदल देते हैं थोड़े से। So ये वाले कोर्स, so XYZ student XYZ is studying these courses, but they are also a TA for this course, जिसका नाम हम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, let's do programming fundamentals. So the second student is studying algorithms and machine learning, and they are the TA for the teaching assistant for the course programming fundamentals. अब अगर मैं इसको print details student वाला ही इस्तेमाल करूंगी, तो you should be able to anticipate that there is going to be a slight issue, because let's wait for it to pop up. तो उसके enrolled courses मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे टीए के टाइप के स्टूडेंट के साथ कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन एडिशनल चाहिए थी, जिसका मतलब है कि प्रिंट डिटेल्स इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एंड दैट इज बेसिकली द आंसर टू दिस इज बेसिकली योर फंक्शन ओवरराइडिंग या रीडिफाइनिंग योर बेस क्लास फंक्शन, व्हिच इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। तो रीडिफाइन करूंगी मैं इसको इस तरीके से कि आई वांट इट, व्हाट आई वांट इज के ये जो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं ये तो होती रहें, बट इन एडिशन आई वांट कि मेरे टीए के असाइंड कोर्सेज भी जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएं। तो आई एम गोइंग टू डू एन ओवरराइडिंग फॉर this function that I have over here. I'm going to override print details for my student TA. So let's just copy this out. तो स्पेसिफिकली मैं ये कॉपी कर रही हूँ, दूसरा नहीं कॉपी कर रही, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी विल बी एबल टू यूज दैट। अच्छा, इनरोल्ड कोर्सेज नहीं मैंने करने, वो तो हो रहे थे, मैंने असाइंड टीए कोर्सेज जो है वो प्रिंट करने हैं। I'm going to switch this out. Now I'm saying कि अब असाइंड टीए कोर्स वाले वेक्टर के थ्रू जाओ, एक एक कोर्स उठाते जाओ और उसको आप प्रिंट करते थे, एंड देन इधर जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो वहां पर रेप्लिकेट कर लेते हैं फॉर our TA courses. So over here we want this. Assign TA courses. So अब मेरे assign TA courses नजर आ रहे हैं for my TA, but I'm going to now miss out all the information जो print details के अंदर जा रही थी, क्योंकि मैंने अभी लिखी नहीं है। So you can kind of see कि यहाँ तक वो पहला स्टूडेंट आ गया और उसने आधी चीजें पिछले स्टूडेंट की हुई हैं। So what I could do is कि I could write everything over here, but what is also available to me is, ये भी एक नई चीज, नया syntax add होने लगा हुआ। I don't think we've discussed this before. We can do this. I can say कि इस student TA की student वाली print details function को call करते हैं। So for line 57, it will first go into the print details for student TA, for print details for student, ये सारी प्रिंटिंग करेगा और फिर वापस आएगा और फिर पर्टिकुलरली आपके असाइंड टीए वाली प्रिंटिंग करेगा। सो वी आर गोइंग टू सी दिस हैपनिंग नाउ। तो दो आपके स्टूडेंट्स थे, दिस इज लाइक अ रेगुलर स्टूडेंट, उसका ID 1 है, उसका नाम ABC है, और उसने 3 कोर्सेज एनरोल किए हुए हैं। दिस इज अ स्टूडेंट टीए, सो उसका ID भी है, उसका नाम भी है, उसके एनरोल्ड कोर्सेज भी हैं, लेकिन उसके असाइंड टीए कोर्सेज भी आपको नजर आ रहे हैं। So this is like the big addition that we have today. इसके अलावा कुछ और चीजें इसके अंदर अब डालते हैं to make this a little bit better,
और nicer to manage. So एक चीज, तो हमने फंक्शन ओवरराइडिंग देखी है with inheritance. फंक्शन ओवरलोडिंग we already know from programming fundamentals कि आप एक फंक्शन की पैरामीटर्स को बदल के उसका दूसरा वर्जन बना सकते हो. So what is a good addition that we could make over here, जिसके अंदर हमें एक फंक्शन का दूसरा वर्जन भी हेल्प करेगा. इट वुड बी समथिंग लाइक दिस कि अगर मैं इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स को कर रही हूँ, enroll कर रही हूँ, and all of those students have the same courses, तो it might be a good idea कि मैं हर एक को, हर कोर्स को अलग अलग ऐड करने की काम ना रखूं, थोड़ा tedious हो जाता है. I also want, I add in another version of add course जो कि एक ब्लॉक के अंदर 5-6 कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट को ऐड कर देते हैं. तो वी आर गोइंग टू डू, लेकिन उसका काम काइंड ऑफ वही है जो ऐड कोर्स का है. सो ऐड कोर्स हो सकता है एक कोर्स ऐड करें, या ऐड कोर्स हो सकता है एक ब्लॉक ऑफ कोर्सेज ऐड करें. एंड व्हाट वी कैन डू इज ऐड इन फंक्शन ओवरलोडिंग ओवर हियर, ताकि मेरे पास ऐड कोर्स के 2 वर्जन बन जाएं, और वो मेरे पास फिर, और फिर हम असाइन टीए कोर्स के भी 2 वर्जन बना सकते हैं मोस्ट लाइकली. डू यू हैव अ क्वेश्चन? तो मोस्ट लाइकली व्हाट इज, सबसे ज्यादा लाइकली सिचुएशन बेसिकली ये है कि स्टूडेंट को ब्लॉक के अंदर असाइन की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है. टीए कोर्सेज जो है वो फ्यूअर होते हैं जनरली इन काउंट. तो वी कैन डू एन ऐड कोर्स, असाइन टीए कोर्स को ऐसे ही रहने देते हैं, उसको कुछ भी नहीं करते. ऐड कोर्स का एक दूसरा वर्जन बना देते हैं, एंड वी सी दैट विल बी एबल टू यूज इट अक्रॉस द बोर्ड फॉर बोथ टीए एंड स्टूडेंट टीएस. तो यहाँ पर मैं ऐड कोर्स को, ये वाली जो चीज थी मैं इधर लिख देती हूँ कि ये मैंने ओवरराइडिंग की हुई है. तो स्टूडेंट टीए का फंक्शन ओवरराइड हुआ हुआ है फ्रॉम द स्टूडेंट फंक्शन. एंड अब मैं करने लगी हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग. सो वी वांट अनदर वर्जन ऑफ ऐड कोर्स. अब इधर क्योंकि लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ रहा है, आई वुड वांट अ वेक्टर, इसी किस्म का स्ट्रक्चर मुझे चाहिए जिसके अंदर से फिर मैं एक एक कोर्स निकाल के एनरोल कोर्सेज के अंदर डाल दूँ. सो आई नीड अ वेक्टर स्ट्रिंग तो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी आई हुई है मेरे कोड राइटिंग में, बट लेट्स जस्ट एंड में उसको एक दफा क्लीन करते हैं. प्रिंट डिटेल्स के अंदर वी वांट, सॉरी मैंने प्रिंट डिटेल्स में डाल दिया. ऐड कोर्स के अंदर वी वांट वेक्टर्स स्ट्रिंग, वेक्टर स्ट्रिंग चाहिए मुझे. और इसका नाम अगर मैं नहीं यहाँ भी लिखूं तो डजंट रियली मैटर. आई एम गोइंग टू पुट दिस implementation in over here. So अब मैंने करना है, I want to iterate over this course list to be added. So let's call it batch, a batch of courses that I want to add. And add करने के लिए मुझे loop इसी किस्म का चाहिए. So let me just copy it out and stick this in here. कि लेकिन अब मैंने प्रिंटिंग नहीं करनी, मैंने ये करना है कि for every course inside the course batch that has been sent to me, मैं उसको enrolled courses के अंदर यही करना है मैंने. लेकिन अब मैंने सबको करना है, इधर एक को कर रही थी, इधर मैंने सबको करना है जो मुझे रिसीव हुआ. एंड यू कैन सी यहाँ पर एक आ रहे हैं और यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं. सो यहाँ पर मैंने एक पुश बैक किया और यहाँ पर मैंने सारे के सारे बारी बारी पुश बैक कर दिए. एंड टू मेक दिस, अच्छा सो अभी मैं इसको चलाऊंगी कोई इशू नहीं होगा, बट जस्ट टू मेक इट मोर एफिशिएंट आई एम डूइंग दिस कि इसकी कॉपीज नहीं बार बार बनाएं. इसकी कॉपीज नहीं बनाए बार बार. जस्ट यूज अ रेफरेंस ताकि यू आर नॉट जस्ट डूइंग एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ दिस. अभी हमारे इस
स्मॉल प्रोग्राम के अंदर बहुत फर्क, एंड लेट्स कीप इट कॉन्स्ट सो दैट आई डोंट एक्सीडेंटली चेंज इट, बट इतने छोटे प्रोग्राम में अगर मैं ये चेंज नहीं भी करती कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ यू स्टार्ट डूइंग मैनेजमेंट ऑफ लार्जर अमाउंट्स ऑफ डेटा, तो इसका मतलब है कि वो हर दफा एक कॉपी बना के असाइन, कॉपी बनाएगा असाइन करेगा, कॉपी बनाएगा असाइन करेगा, तो जस्ट टू मेक अंडर द हुड, टू मेक थिंग्स अ लिटिल बिट मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूसेज, मैंने इसको कह दिया कि इसको बाय रेफरेंस इस्तेमाल कर लें, और एनरोल्ड कोर्सेज के अंदर उसका अपना वर्जन बन के इंसर्ट होता जाएगा। सो अब मैंने ऐड कोर्स का, क्योंकि ये क्रिएट कर दिया है, बैच क्रिएट कर दिया है, आई डोंट नाउ आई कैन डू दिस, क्योंकि कभी ये भी हो सकता है कि मैंने खाली एक ही कोर्स ऐड करना है, बट आई वांट टू नाउ एक ही बैच के अंदर मैंने कोर्सेज असाइन करने हैं। तो मैं अपने लिए एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स बना लेती हूँ, जिसके अंदर सारे के सारे कोर्सेज मैंने लिखे होंगे जो मैंने किसी को असाइन करते हैं। सो आई कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, I can say physics, I can say your liberal arts का कोर्स, सारे के सारे ऐड करते हैं। Forgot to write a name, but we can call it batch. And over here we will now say कि मैंने इसको एक स्ट्रिंग नहीं भेजनी, मैं पूरा का पूरा बैच भेजने लगी। और उसी तरह से तो आइडियली जिसमें, तो अगर यही वाले इसी तरह के स्टूडेंट्स हैं, आई कैन यूज द सेम सेमेस्टर का स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं, और फिर रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं और टीए भी वही वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आई कैन जस्ट यूज द सेम। मैं चाह रही हूँ इस वक्त कि स्टूडेंट ए को भी सेम कोर्सेज मिलें, बी को भी सेम कोर्सेज मिलें, लेकिन बी को इन एडिशन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का टीए जो है मैंने असाइन कर देना है। आई एम गोइंग टू से इसको भी सेम ही कोर्सेज असाइन करें। So the overloaded function is going to be available to both student and student TA, और अब मैं इसकी revised version अगर टेस्ट करूं, तो it is showing me कि उसने बैच के अंदर मेरा ओवरलोडेड फंक्शन इस्तेमाल करते हुए तो बोथ स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, उसने उन दोनों को यही वाला बैच ऑफ कोर्सेज असाइन कर दिया। एंड इन एडिशन योर टीए, जो स्टूडेंट टीए है उसके पास आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स अटैच हुआ हुआ मिल रहा है। सो दिस वन इज, सो दिस, ये अगर फंक्शन ओवरराइडिंग थी कि हमने प्रिंट डिटेल्स का फंक्शन कस्टमाइज कर दिया था एज इट वाज अपेयरिंग इन स्टूडेंट, लेकिन हमने कस्टमाइज कर दिया था स्टूडेंट टीए के लिए। इन एडिशन हमने स्टूडेंट वाला भी प्रिंट डिटेल्स इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके ऊपर फिर जो भी कस्टमाइजेशन हमें चाहिए थी वो हमने ऐड ऑन कर दी थी। दिस सेकंड वर्जन दैट वी डन ओवर हियर इज, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। सो फंक्शन ओवरलोडिंग आप लोगों ने रेगुलर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वाले प्रोग्रामिंग के अंदर भी की हुई है, बट नाउ वी हैव फिट इट इनटू आवर स्टूडेंट inheritance wali framework as well. So let's add a little bit more info, functionality into this. Let's also say कि print details मैंने console के ऊपर भी करने हैं, और print details मैंने ऐसे भी करने हैं कि मैं इसको फाइल के अंदर सारा कुछ लिखवा दूँ। So let's add on a little bit of filing over here. तो पहले ये कर देते हैं। The header file that we're going to need. So for everybody who is doing filing for the first time, यहाँ पर मैं एक independent small filing का function लिखने लगी हूँ, and then we'll move on and add on the same thing into our classes. But let me do it independently first because just for a quick recap. So let me also label this. So bit by bit डाल रहे हैं। So पहली चीज हमने डालनी है कि फाइल राइटिंग मिक्स है,
हो जानी चाहिए. So let's just do file writing. So और file writing लिख देती हूँ मैं. तो आई वॉन्ट टू राइट समथिंग टू अ फाइल. तो बेसिकली काम सारा आपका उसी तरह से होगा जैसे सी आउट के लिए होता है. द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू डू इज कि सी आउट तो जेनेरिक आप सी आउट लिख सकते हो बिकॉज कंसोल एक ही होता है आपकी एप्लीकेशन जब चल रही होती है. लेकिन जब फाइलिंग आप कर रहे होते हो और किसी फाइल के अंदर लिख रहे होते हो तो यू कैन हैव मल्टीपल फाइल्स दैट यू आर राइटिंग टू. तो हमने एक सी आउट की तरह की चीज बनानी है और हमने उसको पॉइंट करना है या हमने उसको इनिशियलाइज करना है कि ये एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर लिखता जाए. एंड दैट जिसको मैं कह रही हूँ सी आउट की तरह की चीज बनानी है उसको बोलते हैं हैंडल. यू नीड टू क्रिएट अ फाइल हैंडल. तो फाइल हैंडल करने के लिए सो आई एम डूइंग आउटपुट के लिए मैंने बनाना है. सो आई एम गोइंग टू डू एन ऑफ स्ट्रीम. उस हैंडल का टाइप है ऑफ स्ट्रीम. आई नीड टू गिव इट अ नेम सो आई कैन लेट मी जस्ट कॉल इट हैंडल बिकॉज ये एक्चुअली है हैंडल ही. एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि इसको किस तरीके से फिर इस्तेमाल करेंगे. माई हैंडल इज गोइंग टू बी इनिशियलाइज्ड by using the name of the file that I want. So let's call it test.txt. And then अब मैं handle को सी आउट की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ. So I can do handle I can say कि एक बैकस्लैश n डाल दें साथ ही डाल देते हैं जिस so that it is quicker to do. फिर कुछ और लिखते हैं and then just close the file. So I'm going to run this and we're going to get a file जिसमें abcxyz लिखा होना चाहिए. तो नॉर्मल प्रोग्राम हमारा चल रहा है. दिस इज माय ऐप. गोइंग टू रन इट. टेस्ट मेरा क्रिएट हो गया. टेस्ट फाइल मेरा क्रिएट हो गया. सो इट्स रिटन ABC and XYZ इनटू इट. तो हमें बस यही फंक्शनैलिटी चाहिए. अच्छा एक और चीज लेट मी जस्ट डू वन मोर थिंग. इसको जब मैं रीरन करूंगी ना तो इट्स बेसिकली रीड ओवर राइटिंग एवरीथिंग ओवर इट. तो अगर मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने ओवर राइट नहीं करना मैंने अटैच करना है तो आई एम जस्ट गोइंग टू इन अ मोड ओवर हियर वेयर आई एम सेइंग कि जब भी आप लिखें तो अपेंड करें. सारा कुछ जो है वो डिस्कार्ड करके उसके ऊपर नहीं लिखते हैं. सो इफ आई डू अपेंड मोड तो इट शुड write down another pair of ABC and XYZ. So if I open my file तो you saw के अभी ही वो एक्चुअली अपेयर हुआ है आपका एक और ABC और XYZ अटैच हो गया. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज कि आप चाहते हो कि उसी के नीचे एड ऑन होता जाए या सारा का सारा जाया हो जाए और नया लिखा जाए. इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप पिक करोगे. लेट मी क्लोज दिस बिकॉज वी डोंट नीड दिस एनी मोर. बट वॉट वी नीड इज अब हमें ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए जो कि स्टूडेंट के लिए भी चले और स्टूडेंट ए के लिए भी चले. और जैसे प्रिंट डिटेल स्टूडेंट का भी था और स्टूडेंट ए का भी था तो उसी तरह आपकी फाइल स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन भी लिखे और फिर फाइल के या फाइल के अंदर आप स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन भी लिखो और फिर फाइल के अंदर आप टीए का भी इंफॉर्मेशन लिखो. तो वी आर गोइंग टू डू इसको मैं ऑफ कर देती हूँ लेकिन पढ़ी रहने देती हूँ सो दैट यू हैव इट फॉर रेफरेंस इफ यू वांट. एंड देन सी के हमने उसको डिजाइन किस तरीके से करना है. तो प्रिंट जब हम कर रहे हैं तो हमें उसको कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं पड़ी. बट व्हेन आई एम गोइंग टू डू अ राइट टू फाइल what I'm going to need is कि easy way to do this is actually कि मैं फाइल अपना प्रोग्राम शुरू करते हुए फाइल खोल लूँ. तो I do this bit when I start my program in main और उसके बाद जिसने राइट करना है उसको मैं वही वाला हैंडल पास करती जाऊँ ताकि वो अपनी राइटिंग करते जाएं. And when we are done with all of the file writing, I come back to main and I do my close. So basically we are going to design it like this कि ये bit मैं main में करूँगी ये वाला बिट भी मैं मेन में करूंगी लेकिन ये जो राइटिंग वाला पार्ट है दिस आई एम गोइंग टू पास अराउंड टू ईच ऑब्जेक्ट
so that it can manage its own printing, जिसका मतलब है कि मैंने हर ऑब्जेक्ट के प्रिंट फंक्शन को अपना फाइल हैंडल पास करते जाना है, और मैंने उसको पास करना है बाय रेफरेंस। आई डोंट वांट अ कॉपी, आई वांट अ रेफरेंस, ताकि वो जो फाइल राइटिंग का पॉइंट का ट्रैक रख रहा है आपका हैंडल, जो कि अभी आपने देखा है कि वो रख रहा था कि पहले ABC लिखता है फिर XYZ उसके आगे लिखता है। तो वी वांट कि जब एक स्टूडेंट का नाम का इंफॉर्मेशन लिखें तो दूसरे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन उसके आगे से कंटिन्यू हो रहा हो, वो हैंडल के पास वो कंट्रोल होगा कि वो आगे वाला पॉइंट जो है वो किधर है। तो हम हैंडल पास अराउंड करेंगे, और हम हैंडल पास अराउंड करेंगे बाय रेफरेंस इन आवर प्रिंट टू फाइल फंक्शन। लेट्स डू अ प्रिंट टू फाइल, और इसके अंदर भी ओवरलोडिंग आ जाएगी, यू कैन काइंड ऑफ गेस, सॉरी ओवर राइडिंग आ जाएगी, यू कैन गेस, क्योंकि प्रिंट डिटेल्स के साथ भी हम एक वर्जन के साथ गुजारा नहीं कर सके थे, हमें स्टूडेंट टीए के लिए दूसरा वर्जन बनाना पड़ा था। सो राइट टू फाइल के लिए भी we are going to make two versions, लेकिन let's do our first version first. It's going to be write to file. अब we said कि हमें ऑफ स्ट्रीम आउटपुट की स्ट्रीम के लिए एक हैंडल चाहिए, एंड आई कुड कॉल इट हैंडल, एफ हैंडल कर लेते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। just make sure that it is passed by reference. This is kind of another type of printing that we're doing, so let's put this here. तो मेरे पास हैंडल यहाँ पहुंच गया। नाउ द ओनली थिंग आई नीड टू डू इज कि यही काम मैंने करना है, लेकिन सी आउट की जगह एफ हैंडल लिख देना। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द इजी वे आउट एंड डू दिस। एंड इफ यू सॉ के मैं पूरा का पूरा कोड रिपीट कर रही हूँ, this should give you a hint that this is also another opportunity for code reuse that I can cash in on, which means कि मैं eventually ये भी कर सकती हूँ। अभी मैं नहीं कर रही because we're just adding and filing and we need to get a bit comfortable with the filing concept. But अगर वो code same है तो then I should be able to just collapse both of these into this parameter के अंदर मैं ये वाली चीज जो है वो भेज दूँ, बेशक कि वो स्क्रीन की हो या वो फाइल की हो, और फिर उसी के थ्रू सारी राइटिंग हो जाए। तो वी डू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी टू मेक दिस कोड इवन मोर कॉम्पैक्ट, लेकिन अभी हम सेपरेटली पहले कर लें सो दैट वी कैन क्लैरिफाई आवर फाइलिंग कॉन्सेप्ट राइट नाउ। सो राइट टू फाइल मैंने कर लिया। आई नीड टू डू दिस। oops, I want to remove it, I want to move, do a copy for my main program. I'm saying कि पहले आप एक फाइल खोल के रखें। ये हमारा पेंड मोड नहीं चाहिए, इसको मैं छोड़ देती हूँ। इसका मैं नाम रखती हूँ students.txt and I'm going to say कि इसको भी राइट टू फाइल कर दें and pass it this handle, pass this handle to it, और फिर B का भी राइट टू फाइल कर दें। अभी हमने ओवरराइटिंग नहीं की, so we're going to have some issues still, but just to see कि मेरी राइट टू फाइल जो है वो चल स्टार्ट हो गई है कि नहीं, चलना शुरू हो गई है कि नहीं, फिर हम इसको वो कर लेंगे, कस्टमाइज भी कर लेंगे। अभी कस्टमाइजेशन या ओवरराइडिंग मैंने नहीं डाली। तो वी हैव डन अ राइट टू फाइल, लेट्स चेक इफ इट इज वर्किंग। यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट्स की फाइल बन गई एंड एवरीथिंग दैट इट हैड पुट ऑन माय कंसोल वो यहाँ भी मुझे लिख के दे रहा है, एक्सेप्ट के क्योंकि मैंने अभी ओवरराइटिंग नहीं की, ओवरराइड नहीं किया हुआ अपना डिस्प्ले प्रिंट टू फाइल फंक्शन फॉर द टीए, इट इज मिसिंग आउट द बिट जिसके अंदर स्टूडेंट के टीए वाले कोर्सेज जो हैं वो पढ़े होने चाहिए। तो व्हाट डू वी नीड टू डू टू मेक श्योर कि वो भी हो जाए, is that
जिस तरह से आपने स्टूडेंट टीए के लिए प्रिंट डिटेल्स को ओवरराइड किया था, हम राइट टू फाइल को भी ओवरराइड करने लगे हैं इधर फॉर द स्टूडेंट टीए, एंड दिस इज आल्सो another example of function overriding that we have over here. So implement कर देते हैं print details के नीचे, and let me just copy it again. यहाँ पे मैंने डालना है and because मुझे यही चाहिए, copy it out. स्टूडेंट का राइट टू फाइल कॉल करें, इसको फाइल हैंडल भेजें, यही वाला, ताकि वो कंटिन्यूटी में लिख सके फाइल के अंदर। एंड अब मुझे असाइंड टीए कोर्सेज प्रिंट हुए हुए मिल जाने चाहिए for the TA as well. So if I run this, it would have rewritten everything. It's still missing it out. So let's see. मेरे साथ में सी आउट को चेंज नहीं किया है अंदर Oh yes. कोड के अंदर ना। हाँ, मैंने कॉपी करते हुए फाइल को नहीं बदला। यहाँ मैंने करना था my f handle, and if I run this now, so this is now appearing because अब वो proper तरीके से, so like the function itself की calling was fine, लेकिन क्योंकि मैंने उसका switch out नहीं किया था f handle, it was still right, it was just rewriting everything to the screen. So this is now doing everything that everything that we kind of basically need for our student and our student TA class की relationship को handle करने के लिए हमने ये दो चीजें, also main thing that we wanted to do today was the overriding, which we've done over here for both print details and write to file. उसके अलावा हमने overloading देखी है, फंक्शन ओवरलोडिंग देखी है, और फंक्शन ओवरलोडिंग को हमने क्लास के अंदर इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप के अंदर इस्तेमाल करके भी देख लिया। तो जब आपने फंक्शन ओवरलोड किया है तो ऐड कोर्स के दो वर्जन्स ऑटोमेटिकली आपके स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट टीए के पास भी पहुंच गए हैं। और उसी तरह से हमने एक और चीज ऐड इन की है, विच इज के हमने फाइलिंग का रिकैप करके क्लास के अंदर फाइलिंग भी डाली, एंड वी बेसिकली सीन कि ये वाली चीज आपने किस तरह पास ऑन करनी है फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, द फाइल हैंडल, so that your filing is done, file writing is done in continuity, and you are able to for instance आपने पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भी बनाया हुआ है, तो यू कैन राइट ऑल ऑफ दैट। सो एक ये भी करके देख लेते हैं कि इफ आई हैव एन array of students, so let's do an array of students, something like batch में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो सेपरेट करके डालते हैं so that I am not overriding over here. And I can say इसके मैं कंस्ट्रक्टर को भी पास ऑन कर सकती हूँ इंफॉर्मेशन फॉर 5 स्टूडेंट्स, so we can do an ABC
one more we put in. Delete this. और अब मैंने स्टूडेंट्स का भी एक पूरा बैच बना लिया एंड देन आई कैन से कि फॉर ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, फॉर ईच ऑफ माय स्टूडेंट्स I want to add in ऐड कोर्स करना है, लेकिन कोर्स भी मैंने बैच के अंदर ऐड करना है एंड देन आई एम गोइंग टू डू अ सेपरेट प्रिंटिंग एंड आई एम गोइंग टू से इसकी प्रिंट डिटेल्स कर दें और आई कुड से कि इसको फाइल के अंदर भी लिख दें. Let's run this first, clear any issues, read and then add to the file as well. So अब मेरे पास स्टूडेंट ए आएगा, बी आएगा और फिर मेरे पास एक पूरा का पूरा बैच ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर हो जाना चाहिए. एंड इट्स टेकिंग अप इट्स वो मेरी आईडी को भी कंटिन्यूटी में चला रहा है. दिस इज माय ये दो वाले इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं जो मैंने पहले बनाए थे और फिर ये मेरे एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसको मैंने वही वाला सेट ऑफ कोर्सेज जो है वो ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड करके डाल दिया. एंड देन आई कुड आल्सो क्विकली जस्ट ऐड ऑन कि इसको भी फाइल के अंदर मैं इसी के अंदर इंक्लूड कर सकती हूँ कि मैं हर स्टूडेंट की प्रिंट वो कर दूँ, प्रिंट टू फाइल भी कर दूँ. So I do write to file and I give it the same handle because I want everything to be. अगर मुझे फाइल डिफरेंट करनी है तो मैं कर सकती हूँ. इस वक्त हम कर रहे हैं सेम के अंदर एंड जस्ट क्लीन अप के लिए I want to actually close the handle that I had not done so far. लेकिन मैं तो खुद वो हो जाता है, लेकिन explicit closing के लिए you should write this in ताकि आपकी फाइल क्लीनली क्लोज हो जाए. If you're doing writing from multiple programs तो कोई issue नहीं create हो. So if we run this, so we now have our array handling in as well. So two questions you should be getting in your mind right now. एक मैंने kind of बता दिया और दूसरे वाला sorry हमने फाइल चेक करना था. दूसरे वाला ये है कि how are we going to, so if you saw मैंने specifically अभी ये किया है कि जब एरे बनाई है तो खाली स्टूडेंट की ही बनाई है. स्टूडेंट की ये मैंने इसके अंदर अभी नहीं डाला बट बेसिकली इवेंचुअली आफ्टर अ कपल ऑफ मोर टॉपिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, वेल इनहेरिटेंस नहीं हम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर जाएंगे जो इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर रहा होता है. उसके अंदर वी आर गोइंग टू बी एबल टू एक्चुअली मैनेज स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट टीएस दोनों इन द सेम एरे. लेकिन इस वक्त हमारे पास एबिलिटी नहीं है एंड यू माइट बी थिंकिंग कि मे बी मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स एक ही एरे के अंदर रखने हैं. तो मेरी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिसमें से 2 टीएस होंगे. तो इस वक्त तो मेरे पास यही एबिलिटी है कि मैं उसको 2 सेपरेट एरेस के अंदर रखूं. बट इवेंचुअली आई एम गोइंग टू गेट विद पॉलीमॉर्फिज्म जिसके ऊपर हम पहुंचेंगे वहां पर हम देख सकेंगे कि आप एक यूनिफॉर्म एरे भी बना सकते हो जिसके अंदर रिलेटेड किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो आप होल्ड कर रहे हो. एंड सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू डू एट सम पॉइंट इज के ये वाली जो
चीज हमने अभी भी ना, इस तरह का कोड आपको किसी वक्त भी नजर आए ना, तो दिस इज एक्चुअली अ बैड कोडिंग प्रैक्टिस, कि आपने एग्जैक्टली एक तरीके का कोड लिखा हुआ एंड यू सॉ कि मैं स्टक भी इधर ही हुई थी क्योंकि मैं कॉपी पेस्टिंग कर रही थी और मैंने एक जगह के ऊपर अपडेट करना भूल गई थी। तो दिस इज बेसिकली द एग्जैक्ट सेम कोड, मोर और लेस, छोटी सी चीज चेंज हुई हुई है, एंड आई एम री राइटिंग द एंटायर थिंग। तो बेसिकली वो जो एक one principle that you should be following, which can be, मैं इधर लिख लेती हूँ so that you can keep it in your mind, is कि you should not be any point you find yourself repeating yourself. So the DRY is basically the acronym, and this is don't repeat yourself when you're writing code. ये आपको कर नहीं रहा होना चाहिए, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैंने फाइलिंग अभी इंट्रोड्यूस की है क्लास के अंदर, so I'm not going to collapse this right now, but eventually हम देखेंगे कि इसको भी आप किस तरीके से collapse करके लिख सकते हो, so that you don't have to do this kind of thing, जिसका मतलब, और अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये जो सी आउट लिखा हुआ ना, ये भी फाइल हैंडल की तरह की चीज है। So if I can just collapse this and stick this into a parameter, और मैं कहूँ print, और फिर मैं उसका सिर्फ हैंडल बदल दूं, तो इधर अगर मैं उसको कंसोल वाला हैंडल दे रही हूँ तो वो कंसोल के ऊपर लिख देगा, और अगर मैं उसको फाइल वाला हैंडल दे रही हूँ तो वो फाइल के अंदर लिख देगा। सो इवेंचुअली वी आर गोइंग टू बी एबल टू कोलैप्स दिस आउट एज वेल, ताकि हम कुछ प्रैक्टिकल किस्म की क्लासेस के साथ काम कर सकें, बट अदरवाइज चल फंक्शनैलिटी के हिसाब से वी आर डन विद दिस क्लास एंड डन फॉर today. Again, I will put up, I hope you are doing the exercises attached to each lecture, but इसके साथ की भी मैं एक exercise post कर दूंगी that you should go over. Make sure that you are doing the filing, ताकि आगे assignments और projects के अंदर we are going to be, you should be comfortable with filing by the time we get to some coding assignments or your projects, because otherwise फिर कोई बहुत reasonable किस्म की application you cannot make if you are not doing filing. Do we have any questions about the lecture? So if there are no questions, I'm going to close the recording and then I will proceed with the attendance. अपने mics वगैरह सब ready करके रख लें. Let me just close the recording and then मैं attendance खोल लेती हूँ.